So we'll take up the first horoscope actually, that is, I think, given by Anvesha. Anvesha is there, no? Yes, sir. Yeah. So this is the first chart she has given, and the date of birth she has said is 23rd August 65. Time is 3:30 morning, and place is Calcutta. I hope it's correct, Anvesha. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yeah. So she wants to know about the health and the future of this person. She's a female. She wants to know about the health and the future. So let us see. This is the Lagna chart basically. So let us see what Lagna chart says. Firstly, if you see the Rashmi Kiran, let's see first the Rashmi Kiran. It is 31.59. So this is a good Rashmi Kiran. Then even if you see the position of planets, you find that degree of most of the planet except Jupiter is less. Otherwise, degree-wise, all planets are well placed. Then even if you see the strength of each planet, particularly Sun is very strong, and other planets are also strong. None of the planet is a weak planet in this case, right? Now, let's see what are the positive and the negative points in this case, actually. Let's start one by one. What are the positive factors? सर सैटर्न अपने हाउस में और कारक भी है 8th हाउस का, तो लॉन्ग लाइफ होनी Saturn चाहिए. is the Karaka for the 8th house. It is in its own sign and posited in the 8th house only, right? Then what else? Moon and Jupiter, Sun they are is together. also very good. Pardon? Sun is also in its own sign. Sun is here. Sun in the 2nd house, and it is in the own sign. And good thing is ki it is with the Shubh Katri Yoga. They are benefic planet on both sides actually. Yes, on both sides of the right. sun, they are benefic planet. So it is in the Shubh Katri Yoga. What सर else? गज केसरी योग भी है. Because Moon and Jupiter, they are together. So we say मार्स that जो करो हो रहा सर है. मरकरी और मून का एक्सचेंज है. wonderful, wonderful. This is an exchange of Mercury and Moon, Lagna and the 12th house. There is an exchange also. 9 सर and राहु first का is lord. also good because Pardon? 11th house में है. Rahu is good being in 11th house. Rahu is in the Upachya Sthan. Upachya sthan. Right. Very And sir, correct. Rahu फर्स्ट is और in the 9th का लॉर्ड को ज्वाइंट है 12 में. Lord of 1st and 9th house, they are together in the 12th house. ठीक है, that is also good. सर मार्स But भी sir, अपने घर को देख रहे हैं लगन- 10th हाउस को. Mars मार्स is इधर जोक करक भी हो रहा है. हाँ, Mars योग कारक है. पहली चीज what Anvesha says is कि is a lord of quadrant as well as trine. So Mars is a योग कारक, and it is aspecting its own sign. Mars is aspecting its own sign, and that is the 10th house. Uncle, can you clarify Yog Karak again, please? Yog Karak is a planet which is a lord of trine as well as a quadrant. So you see Mars. Mars is the lord of this house, which is a quadrant, Kendra hai. And it's a lord of this house also, which is a trine, or we call it trikon. So whenever any planet is a lord of quadrant as well as a trine house, we call the planet as Yog Karak. And this Yog Karak planet is like a Raj Yog Karak. It becomes very strong, even stronger than the exalted planet. Understood, Uncle. Thank you. Sir, And trine would be Jupiter is also- 159, correct? Pardon? Trine would be 159.
Trine is 159 and quadrant is 14710. Yeah. Correct. Thank Sir, you. Jupiter is also aspecting its own sign in 6th house. Jupiter is also aspecting its own sign in the 6th house. Very correct. And Jupiter is aspecting 8th house also, जो कि longevity का कारक है. हाँ, Jupiter is very good. Jupiter is aspecting the 8th house, which is the house of longevity also. और बताइए. Venus is debilitated here, but is there a cancellation of debilitation or not? Is the debilitation getting cancelled or not? सर आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि मून से ये 4th में हो गया ना एक दूसरे से केंद्र में. नहीं, मून से केंद्र में होने से नहीं होगा. नहीं होगा. Mercury, There are two conditions. मरकरी और जुपिटर. हाँ, अगर- either Mercury and Jupiter should be in the quadrant with each other, or Venus and Moon. Sorry, Venus and Jupiter. They should be in quadrant either from the ascendant or from the Lagna or from the Moon. Then only this debilitation gets cancelled. यहाँ पर debilitation is not getting cancelled. कैंसिल. Venus is debilitated. और Venus के बारे में और क्या चीजें हैं यहाँ पर? Venus, दोनों तरफ उसका malefic planet भी Right. दोनों तरफ malefic planet है. This is a Pap Katri Yog, hammed between two malefics. And it is an aspect of Rahu also. It is an aspect of Rahu also. And I don't think there is any benefic influence on the Venus actually. There is no benefic influence on Venus. And even if you see the Navan chart, यहाँ पर, what is the position of Navan chart? Sir, Venus is with debilitated Saturn. And it is afflicted with Ketu also. Ketu. And of course, it is an aspect of Jupiter also. Aspect of Jupiter also. So, Venus is not a very strong planet, firstly. Venus is not a very strong planet, and Venus is a planet of all material comforts also. And the Lagna Lord in the 12th house, or what you said that even the Lord of the 1st and the 9th, both are in the 12th house. So that is also not supposed to be a good position from finance point of view. Now, let us see what is the present position, because she is concerned about the present health and future. What dasha she is running? मरकरी में राहु. Mercury and Rahu dasha at present she is running. So what is the position of Mercury and Rahu? That we have to see. So Mercury is Lord of 12th, but it is in Lagna. Here if you see Mercury and Rahu, both are in a good position. Here also Mercury and Rahu, they are in a good position. And what is the effect of transit? Say Saturn is here. Saturn is here. And Jupiter is also here for the time being. And this is aspected by Mars. This is aspected by Rahu. Right? Yes, sir. Is on this 10th sign or in the 7th house, there is an aspect of Mars, there is an aspect of Rahu, and Saturn is already placed here. It means this 10th sign or the 7th house has an aspect of 3 malefic planets, Saturn, Mars, and Rahu. But however, at present, Jupiter is also there.
Yes. So that is a positive aspect. But Jupiter will change its position on 6th of April. So Jupiter will move to this sign. Right. So this sign will remain afflicted with Mars and Rahu. Mars, Saturn and Rahu. Mars, Saturn and Rahu for complete 1 year. That is till April 2022. Till April 2022. Right? Yes, sir. And if you see this Rahu, because Dasha is Mercury and Rahu. Rahu. And 10th sign seems to be afflicted. So 10th sign, there are two things actually. One, this is the house of marriage, and second, this is the sign of which represent your knees. So 10th sign basically represent your knee, and when 10th sign is so much afflicted, it indicates the problems of, it may indicate the problem of knees also. So Anvisa, is there any problem with the, at present, what is ये the सर problem? ये और उसको माँ का ही है, और ये आके ऑपरेशन ही कराना है नीज का. नीज का ऑपरेशन ही होना है. तो वही लग रहा है, क्योंकि जैसे ही जुपिटर यहाँ से हटेगा इस हाउस से, अभी तो 10th साइन में है, तो ऑन 6th of April इट विल गो टू दिस साइन एक्चुअली. और जैसे ही इस साइन में जाएगा तो कंप्लीट 1 year इज देयर. तो यही इंडिकेट करता है कि इस पीरियड में नी का ऑपरेशन तो होगा. और ये क्या सर ठीक हो जाएगा ना, मतलब? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि नी का ऑपरेशन होने के बाद, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में चला जाएगा, वहां सैटर्न ऑलरेडी है और जुपिटर उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है. जुपिटर उसको एस्पेक्ट भी कर रहा है. तो ठीक तो बहुत जल्दी हो जाएंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट ओनली थिंग इज कि जो कि 10th साइन काफी अफ्लिक्टेड है, तो ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई चारा नहीं है इस समय जो है. बट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम देखें कि जो बाकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो ठीक है. सर ये जैसे 10th 7th हाउस में इतना दिक्कत है, इसके वजह से क्या पापा का भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल हैं. बट अगर आप नवांश चार्ट को देखेंगे तो नवांश चार्ट डजंट इंडिकेट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि मरकरी एंड राहु, इफ यू सी हियर, दे आर वेल प्लेस्ड. तो मैरिज के हाउस में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आती. ठीक है. तो ये अपने हाउस में, क्योंकि 7th हाउस खुद के लिए मारक भी है और 10th साइन भी है, जो कि आपके नी को रिप्रेजेंट करता है. तो यही लग रहा है कि मतलब फादर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. उन्हीं को हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, और क्योंकि अगर नवांश अगर खराब होता तो फिर तो हो सकता था कि फादर को भी प्रॉब्लम होती. बट नवांश चार्ट में दिस पीरियड इज फाइन, तो इसलिए ऐसा कुछ नजर नहीं आता एक्चुअली. सर जो ये ट्रांजिट्स होते हैं वो हम नवांश में भी उनका इफेक्ट देखते हैं? हाँ, नवांश में भी देखते हैं. नवांश में भी ट्रांजिट्स का इफेक्ट, हाँ, और हाँ, दशा महादशा का भी? या नवांश है, ट्रांजिट है, दशा है, प्लैनेटरी पोजीशन है, वो सब चीजें हम वैसे ही देखते हैं. बट मतलब सर जैसे 10th साइन में अगर सैटर्न जुपिटर है तो हम नवांश के भी 4th हाउस में उसका इफेक्ट देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके सर, थैंक यू. और वैसे भी जो दशा है मरकरी राहु, मरकरी दोनों ट्राइंस, और राहु भी यहाँ पर है 9th हाउस में. तो नवांश के पॉइंट ऑफ व्यू से या हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इंडिकेटेड, और जुपिटर इन दोनों को देख भी रहा है. अगर हाइपोथेटिकली अगर आप indicate करती problem for the husband, you would have seen it in the Navansh in the 7th house? Correct. No, not only 7th house. In general, that dasha, what she is running is Mercury Rahu. Hanji. So firstly, Mercury Rahu both are placed in the trine houses, which are good houses. Both have the aspect of Jupiter. Both have the aspect of Jupiter. And Jupiter will transit now in this sign, 11th sign. So again, it has an aspect on this also and this also. So this is really a positive point कि जो ऑपरेशन होगा because of the transit काफी खराब है, क्योंकि जब Saturn Mars राहु का इकट्ठा ट्रांजिट होता है तो नेचुरली प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है.
बट जो बाकी जो इंडिकेशंस हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम द नवांश चार्ट, दे वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इससे ये लग रहा है कि रिकवरी काफी जल्दी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके सर। अंकल, सो आपने दो चीजें मेंशन करी कि जो ट्रांजिट देखते हैं हम विल सी इट फ्रॉम द लग्न चार्ट, आल्सो द नवांश चार्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड नवांश में जब हम एस्पेक्ट देखेंगे तो पहले देखेंगे कि इनिशियल नवांश में क्या एस्पेक्ट था एंड देन ट्रांजिट में क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, दोनों तरह से देखते हैं, दोनों का अलग अलग है। जैसे मैंने कहा था कि तीनों चीजों को देखते हैं एंड ऑल द थ्री हैव द इक्वल वेटेज। अंकल, ये जो बड़े प्लैनेट्स के ट्रांजिट होते हैं, जैसे अब जुपिटर का ट्रांजिट 6 अप्रैल को हो रहा है, तो हाउ मच टाइम बिफोर द ट्रांजिट कैन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंपैक्ट बीइंग फेल्ट? We discussed actually when we discussed about the result of the transit, then we discussed that some planet they give result immediately after entering into a sign. अच्छा, Some people they give result when they are in mid of the sign actually. तो And जुपिटर some का planet, क्या है फिर से? pardon? जुपिटर के लिए क्या होगा अंकल? Jupiter, I think you can refer to that PPT also. It is somewhere in when it is in the mid of the sign actually. I see, okay. Yeah. सर मार्स का तो मतलब शुरू ट्रांजिट में मार्स का हो तो जाता है। बहुत शुरू में इफेक्ट होता है उसका, बट मार्स तो देख रहा है उसको, जैसे मार्स का प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं है। मैं ऐसे बोल रही हूँ जो मार्स का ट्रांजिट के जस्ट शुरू होते ही बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता इमीडिएटली है। आफ्टर ट्रांजिट। दैट इज द प्रॉब्लम विद द मार्स बिकॉज दिस वेरी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट, उसके रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिलते हैं। Okay. सर, जो प्लैनेट्स जब ट्रांजिट होते हैं तो उनकी डिग्रीज पे भी डिपेंड करता है, आई मीन Naturally, विद रिस्पेक्ट टू असेंडेंट की डिग्री। naturally, transit means suppose when we see a transit of malefic over a malefic, तो naturally जब उसके बहुत पास में आएगा ओके, तभी उसका ज्यादा इफेक्ट होगा, जब डिस्टेंस रहेगी तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। राइट सर, राइट, थैंक यू सर। बट दिस हॉरोस्कोप वाइज इट्स अ गुड हॉरोस्कोप एक्चुअली। और एक चीज जैसे ये ठीक है, बट सर पहले से देख के आए हैं जो मतलब माँ का एज ए लाइफ अगर देखा जाए तो मतलब संघर्ष जो होता है ना बहुत ज्यादा था। वीनस, वो मैं कह रहा हूँ कि वीनस इज ए वीक प्लैनेट, बट आई टेल यू कि मतलब ये तो वीनस तो ठीक है बिकॉज देश पात्र काल का भी हम लोग ध्यान रखते हैं, बट अनलेस वीनस इज वेल प्लेस्ड यू कैन नॉट गेट द मटेरियल कंफर्ट्स। सर, इनके दो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड भी हैं, और मरकरी और सैटर्न। हाँ, इससे पहले ये भी था कि इससे पहले का जो पीरियड था उसमें तो सैटर्न का पीरियड चल रहा था साला 19-20 साल, तो इससे पहले सैटर्न का पीरियड चला है ना, अब मरकरी का तो अब चल रहा है। जैसे सर मरकरी खत्म होने के बाद इसके बाद जो महादशा आएगा उससे क्या मतलब ऐसे थोड़ा सा शांति होगा या फिर से देखिए, दिक्कत? नहीं मरकरी का पीरियड कब तक है? सॉरी, 28 तक है, उसके बाद केतु का पीरियड आएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ केतु हियर। केतु यहाँ पर है, 5th हाउस में है, केतु जो है 5th हाउस में है और मार्स का साइन में है। हाँ, और 9th हाउस को देख रहा है, तो केतु इज बेसिकली स्पिरिचुअल प्लैनेट, और जो हम 5th और 9th हाउसेस हैं दे आर बेसिकली द हाउसेस ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म ओनली, तो वहीं पर उसका प्लेसमेंट भी है। तो केतु के रिजल्ट खराब नहीं होंगे किसी भी, मतलब हम कहेंगे कि कोई हेल्थ वेल्थ या ऐसी कोई खराब नहीं करेगा। ओनली थिंग इसकी धर्म ध्यान में ज्यादा ध्यान लगेगा और क्या होगा। सर, 5th हाउस में केतु कुछ बच्चों से भी प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा नहीं, भी अकेला होता है? केतु है, अगर और ज्यादा एक प्लैनेट कोई खराब नहीं करता किसी भी हाउस को, ये ध्यान रखिए हमेशा। ओके सर। प्रॉब्लम कम्स व्हेन देयर आर मोर देन वन प्लैनेट एक्चुअली। तो सर सैटर्न भी तो देख रहा केतु को। हाँ, सैटर्न यहाँ देख रहा है, वो एक नेगेटिव है, तो 5th हाउस के ऊपर सैटर्न और केतु का एस्पेक्ट है, पहली चीज। बट इसका जो लॉर्ड है मंगल की पोजीशन तो स्ट्रांग है, और मंगल के ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, पहली चीज। तो जब भी हम हाउस को एनालाइज करेंगे तो प्लैनेट की पोजीशन से तो आपने कह दिया कि सैटर्न और केतु का एसोसिएशन है, पहली चीज। जब हमने लॉर्ड को देखा उसको, तो लॉर्ड के ऊपर लॉर्ड इज मंगल मार्स, योग कारक है। देन थर्ड इज द कारक,
Karak for children is Jupiter. And Jupiter, you see, is aspecting the Lord actually. So, and Jupiter is the Lord of 9th house also. तो Jupiter की position भी ठीक है, तो बच्चों के point of view से खराब नहीं है. अगर खाली तीनों चीजों को हम मिलाकर देखेंगे तो इस बच्चों के point of view से इसे normal, इसे good house actually. मतलब सर ऐसे देखा जाए तो इनके साथ हमारा मतलब मेरे भाई का रिश्ता सही रहेगा ना? हाँ हाँ, वो तो सही रहेगा ही बिल्कुल. सन और मून दोनों ठीक हैं, दोनों उस पॉइंट ऑफ व्यू से खराब नहीं है, क्योंकि सन आप देख रहे हैं कि शुभ कत्री योग है, अपने साइन में है. मून भी लॉर्ड ऑफ लगना है, भले वो 12th हाउस में हो, बट इट इज विद द जुपिटर एक्चुअली. और एक्सचेंज भी हो रहा है मून और मरकरी का. हाँ, मून और मरकरी का. हाँ, तो बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम इंडिकेटेड नहीं है. बट ये है कि इस समय जैसे सैटर्न मार्स राहु, जिसकी वजह से ऑपरेशन हो रहा है ये, और वैसे भी राहु का सब पीरियड चल ही रहा है, तो राहु का उपाय करें मेनली, और मंगल का और शनि का, जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं मंगल और शनिवार के दिन, वो कर सकते हैं. और पर्टिकुलरली राहु का उपाय भी ज्यादा फायदेमंद होगा. राहु का उपाय मतलब राहु का चीजों का जैसे दान वगैरह जो करना होता है. राहु का जैसे कुछ भी कर सकते हैं, सफाई कर्मचारी हैं उनको कॉइन्स आप दे सकते हो संडे के दिन. हाँ, सूजी का हलवा वगैरह जो सूजी का आपने हलवा बोला बांट था. सकते हैं, भैरव के मंदिर जा सकते हैं, सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. मतलब वेनस, जैसे वेनस इधर वीक है, तो वेनस के लिए क्या सरस्वती जी का मतलब सरस्वती देवी का पूजा या फिर दुर्गा माँ का पूजा ये कर सकते हैं? नहीं, लक्ष्मी जी के लिए है वेनस जो वेनस है. लक्ष्मी जी की. हाँ, लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी. और वीनस के लिए तो यह है कि ब्लाइंड्स को आप दान करेंगे, फ्राइडे के दिन जो है सफेद चीज का दान करेंगे तो उसका फायदा होगा. मतलब ऐसे अगर से वेनस का पूजा करे तो लक्ष्मी जी का. लक्ष्मी जी का, राइट. और सर एक चीज, इनको पाल तो हम नहीं बोल सकते जो ये पहनो, क्योंकि इनका 11 का लॉर्ड 12th में चला गया. नहीं, नो स्टोन विल सूट एक्चुअली. कोई स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है इसमें. ऐसे अगर मतलब पहनने का है कि हाँ मुझे पहनना ही है, ऐसा है तो कोडाल बोल सकते हैं. नहीं, कोई नहीं पहनेंगे. ओके सर, ओके सर. क्योंकि प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ मंगल आल्सो, तो उसको स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है इस टाइम जो है. ठीक है सर. ठीक है. हाँ, थैंक यू सर. I think this is another horoscope. Sorry, what happened? Given by Dr. Jaya Gupta, and this is 25th April 73, 2020. And सर यहाँ पे 2030 है. pardon? 2020 बोल रहे हैं ना आप टाइमिंग? No, it's 2030. Okay. And place is Delhi. And she says he's a lawyer. Please tell when will he have a good practice and good earning. Can he earn a good name in the practice? So this is what I think her question. But I think she's not there. Dr. Jaya Gupta. She was not able to join. Anyway. So let us see. This is the Lagna chart. This is Navan chart. And we have the suns also. But before that, let's have a look at the longitude, etc. The planets, if you see, they seem to be okay. And you see the Rashmi Kiran is more than 56 actually. So Rashmi Kiran is really good actually. Rashmi Kiran is really good. And let us see the strength also of the planets.
Sun is very strong, moon is very strong. This is Mercury is weak. सर ये मार्स वीक है ना? This Mars is weak, and other planets are, I think, they're all good actually. वेनस planets are थोड़ा सा ये है. हाँ ठीक है, but not so bad actually. But सर particularly जुपिटर भी वीक है. Jupiter is weak. sir. Jupiter is 5.5. So Jupiter is also weak. Mars is weak, and like this, Venus is also So weak. Venus is combust also. So let us see now whether Venus is combust or not. Sun is 11 degree Venus and is 15. Venus is 15 degree. So naturally, Venus is combust in this case. Now, let us see the planets here. I think there are two planets. One is Mercury, and another is Jupiter. These two planets are debilitated here, Mercury and Jupiter. So let's see whether debilitation is getting cancelled or not. सर Start with जुपिटर का the तो जुपिटर कैंसिल हो रहा है क्योंकि मार्स के साथ ही है. Mars exalted. is. हाँ, तो ये Jupiter is not aspected by sign dispositor. Exaltation sign is Mars से क्या relation है? So Mars is exalted in 10. 10 number. Right. So debilitated planet is posited with an exalted planet. Right. So from that angle, you can say that this debilitation is getting cancelled. Very good. Secondly, about this Mercury. Mercury. It's not getting cancelled Yes sir. because Sir, Venus is in Kendra from Moon. So will it not get cancelled? no, but why Venus is connected with this? Sir, वो 12 में exaltation sign. नहीं, Venus is exalted in 12. No. We have to see there are two things. Venus and Jupiter. हाँ. Either if the planet is aspected by its sign dispositor, if it is an aspect of Jupiter, then it got cancelled. If it is with an exalted sign, if Venus was here, then it was cancelled. Third is planet and the sign dispositor. They are not in the Kendra. Then lord of its exaltation sign and lord of its debilitation sign. That is Mercury and Jupiter. If they are in the mutual Kendra, then also it gets cancelled. So Mercury is not getting cancelled. It remains debilitated only. Right. 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 Now you see, so Kalsarp Yoga is here. Yes sir. Kalsarp Yoga is there because all planets are between Rahu and Ketu only. What else? What is the position of Venus? Sir, 6th में combust है. पहले हमने देख लिया कि combust है. 6th house में है sir. दोनों malefic planet है. 6th house में है. Hemmed bit. सन इसको देख, सन के साथ में है. मार्स भी देख रहा है. देख रहा है. Saturn. राहु भी देख रहा है. राहु भी देख रहा है sir. तो Venus is afflicted with Sun, Mars and Rahu. Weak तो है ही है, but साथ में जो है afflicted भी है. और similarly अगर हम 10th house के लॉर्ड को भी देखें, ये 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट किस प्लैनेट का है? राहु का, मार्स का भी है सर. मार्स का है. हाँ. मार्स एंड राहु का एस्पेक्ट है. कोई बेनिफिक एस्पेक्ट तो नहीं है मेरे ख्याल में, कोई नहीं है. No. इसका लॉर्ड जो सन है एक्सॉल्टेड होकर 6th हाउस में बैठा हुआ है ऑफ कोर्स, और इसके साथ भी जो मार्स एंड राहु का एस्पेक्ट है, तो हम कहेंगे कि जो 6th हाउस है या 10th हाउस का लॉर्ड है वो भी एफ्लिक्टेड है यहाँ पर. ठीक है. और दूसरा ये इवन अगर हम इसको देखें 7th हाउस को, इस हाउस को, which is the house of business also,
और जो भी पार्टनरशिप वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो ये हाउस। तो इसका भी जो हाउस है, सैटर्न इज प्लेस्ड एंड इट इज हैम्ड बिटवीन मेलिफिक प्लैनेट्स। और जुपिटर का एस्पेक्ट तो है, बट दैट इज नॉट सच ए स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट एक्चुअली। तो ये हाउस भी बहुत अच्छा नहीं है। और अब क्योंकि प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि particularly because he's a lawyer actually, तो लॉयर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? Mercury. सर एक सैटर्न का स्ट्रांग होना। जुपिटर शुड बी इम्पोर्टेंट, लॉ उससे रिलेटेड है। Mercury. कम्युनिकेशन। हाँ, देखिए सबसे पहले जहां तक खुद का सवाल है, टू बी सक्सेसफुल इन द लॉ, फर्स्टली द मार्स शुड बी वेरी स्ट्रांग राइट, unless you have a confidence, and Mars also gives the ability to analyze a thing logically. So that is very necessary when you argue a case actually. तो confidence और जो logical analysis है वो weak हो जाता है. Then second is the Mercury, which is very very important planet in law, because you have to communicate, you have to argue the cases actually. तो मरकरी इज रियली ए वीक प्लैनेट। वैसे भी अगर हम देखें तो मरकरी कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है यहाँ पर जो है। तो लेकिन इनका मार्स तो स्ट्रांग है, लग्न का लॉर्ड है और एक्सॉल्टेशन में भी है। अभी देखा ना हमने मार्स की डिग्री कितनी कम है, मार्स की जो स्ट्रेंथ है, दैट दिस इज व्हाट वी सॉ हियर एक्चुअली, कि जो मार्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है 4.7 है खाली। ओके, सो सर एक्सॉल्टेशन से बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी? नहीं मिली, बिकॉज वी लुक इनटू सो मेनी फैक्टर्स। राइट। तो somehow maybe because I don't know कि काफी वीक आ रहा है यहाँ पर जो इसकी षटबल है, जो सर डिफरेंट वैसे एंगल से। डिग्री भी काफी हाई है मार्स की, 27 डिग्रीज है। हाँ, बट जब हम उसको डिविजनल चार्ट वगैरह में एग्जामिन करते हैं और एंगल से एग्जामिन करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास। राइट। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो काफी कम दिखा रहा है। और अगर हम देखना है कि सक्सेसफुल होगा भी नहीं होगा, तो लेट अस सी द सन चार्ट आल्सो, व्हाट द सन चार्ट सेज। क्योंकि प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, तो द सन चार्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? Lagna. सर लग्न एंड 10th हाउस, लगना 10th हाउस। 10th का लॉर्ड लग्न एंड द सन, दो चीजें हैं जो कि अगर यू वांट टू गेट अ गुड स्टेटस इन द प्रोफेशन, सो लग्न शुड बी स्ट्रांग एंड सन शुड आल्सो बी वेल प्लेस्ड। तो इन दोनों की क्या पोजीशन है? सर सन तो 12th हाउस में है। लग्न का लॉर्ड, पहली चीज तो यह है कि लग्न का लग्न इज हैम्ड बिटवीन मेलिफिक्स। सन सैटर्न, यस सर। लग्न को आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ भी मेलिफिक है, यहाँ भी मेलिफिक है, तो हैम्ड बिटवीन मेलिफिक। लॉर्ड ऑफ दिस हाउस हैज गॉन टू द 10th हाउस, सॉरी 12th हाउस। 12th हाउस और इसके ऊपर केतु का भी एस्पेक्ट है, राइट। और सन तो नेचुरली चला ही गया 12th हाउस में, सो इट हैज बिकम ए वीक प्लैनेट। तो दशांश चार्ट जो इंडिकेट करता है, it doesn't indicate a very good status in profession, or a person can get a very good status in the profession also. तो वो भी एक दशांश चार्ट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इवन अगर हम नवांश को भी देखें थोड़ा सा कि क्या है नवांश में पोजीशन, नवांश में भी देखिए क्या पोजीशन है कि जो लग्न वीक है। हाँ, लग्न जो है उसमें सारे मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, ऑल मेलेफिक्स, सन, सैटर्न, राहु, मार्स, जितने भी मेलेफिक पॉसिबल हो सकते हैं, उन सब का इन्फ्लुएंस लग्न के ऊपर है। तो लग्न इज वेरी वीक इन नवांश चार्ट। और अगर हम कहें कि वीनस भी है, विच इज एफ्लिक्टेड विद ऑल मेलेफिक्स, वीनस इज आल्सो एफ्लिक्टेड विद ऑल मेलेफिक्स। तो लग्न में भी कोई, जहां तक सन का सवाल है, सर नवांश चार्ट में वो भी 12th हाउस में है, वहां भी दशांश चार्ट में भी 12th हाउस में है। यहाँ पर
6th हाउस में। 6th house. तो कहीं पर लग नहीं रहा कि कोई मतलब सपोर्ट मिल रहा है कहीं से, किसी भी जगह से अगर हम देखें तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता एक्चुअली। सर अगर दशांश में लग्न के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, उससे कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा देखिए या जैसे गज केसरी योग हाँ, भी है इनकी राशि चार्ट में? नहीं योग वगैरह हम नहीं देखते। हाँ यहाँ पर गज राशि केसरी, हाँ यहाँ तो गज केसरी योग है ही है, बट जो यहाँ से तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलता है, बट दशांश चार्ट से हम अल्टीमेटली देखते हैं कि जो इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है वो एक्चुअली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे आप जब लग्न चार्ट देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव इंडिकेशंस, बट एक्चुअल में नहीं मिल पाते क्योंकि जो डिविजनल चार्ट है वो सपोर्ट नहीं करते। तो वही यहाँ पर अगर हम देखें तो D10 चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, और ना ही नवांश चार्ट सपोर्ट कर रहा है। कि नवांश चार्ट भी अगर बहुत अच्छा होता है तो चलो इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाते हैं, बट नवांश में भी जो लग्न है तो बहुत वीक है। आई डोंट नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पर्सन, बट जो हॉरोस्कोप है वो तो इट इंडिकेट्स प्रॉब्लम्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एक्चुअली। नमस्ते आंटी। हेलो Jaya is not online. Jaya ji, she is not here today. she is not here actually, Dr. Jaya actually. तो बट सर इनका रश्मि किरण इतना ज्यादा है फिर भी सभी में इतना प्रॉब्लम। इवन देन यू सी दैट नहीं हो पाया कुछ भी जो है। मे बी इनिशियल लाइफ कुड हैव बीन बेटर, बट ये जो काल सर्प योग वगैरह बन गया या जो डिविजनल चार्ट इतने वीक हैं तो वो कोई भी जो पॉजिटिव इंडिकेशंस है वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं इसमें डिविजनल चार्ट में जो है। और काल सर्प योग भी है, काल सर्प योग भी है। आ गई डॉक्टर जी, शी हैज कम एक्चुअली। Okay. So aspect of life, one aspect would be missing. नहीं, she has come, so let her join actually, so. जया जी आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। बताइए what do you want to ask about this person? Actually he has no earnings, very low earnings. I think till date he is not earning anything. Right. He is a lawyer but there is no earning. जी. So he wants to know. What about other aspect like marriage and other things? He is married, he is having 2 daughters. And father died when he was 6 years of age. And that's all. Otherwise he is very dominating and he cannot do any service. He cannot work under anybody. He is very dominating. And his younger brother is very loyal to him. जो इसने बोल दिया वही होगा, ब्रह्मवाक्य. And he will never tolerate injustice. And he is always successful in his endeavors against injustice. So his personality is very dominating. And he professionally he is not able to do well actually. Yes. And he is very good socially. In relatives he is very helpful. He is helpful to all relatives. But his personal income is nothing. Achha. This is what we were discussing actually just now. So we were finding कि जो divisional chart है वो बिल्कुल भी support नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए जी. और professionally भी लगता नहीं है, particularly in the profession of law, क्योंकि Mars और Mercury weak हैं तो success indicated नहीं है बिल्कुल भी जो है. And आप जो कह रहे हैं कि younger brother is very loyal, so that may be because of this house, third house. जी. थर्ड हाउस को अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्स भी है एक्सॉल्टेड, मून जुपिटर, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्ड हाउस. Okay, then how will be the future of his 2 daughters? How was his initial life? Initial life was very struggled because father died when he was 7 years only, 6 or 7 years. Actually. Not a good life, but somehow family pulled on.
तो वही है, बिकॉज ये काल सर्प योग भी है, जी so that also is a cause of imbalance in the life. यस और बाकी जैसे सन वगैरह भी, जैसे हम देखा था अभी कि एफ्लिक्टेड है, वीनस भी एफ्लिक्टेड है, और इवन जो 7th हाउस भी है ना, वो भी बहुत अच्छा नहीं है मैरिज का। तो सब जगह प्रॉब्लम ही इंडिकेटेड है। और अभी तो चलो ठीक है कि ही इज हैविंग ए पीरियड ऑफ जुपिटर, और वो भी जुपिटर का जो पीरियड है वो मार्च का पीरियड अब खत्म हो जाएगा जून 21 में, अगस्त 21 में। उसके बाद जुपिटर राहु का पीरियड शुरू होगा, और उसके बाद शनि का पीरियड शुरू हो जाएगा। तो और दूसरा ये है कि 7.5 भी चल रही है इस समय इसकी, 7.5 का इस समय सेकंड फेज भी चल रहा है। तो लगता नहीं है कि कुछ बेटर होगा, और जैसे सैटर्न का पीरियड जब शुरू होगा तो और भी पोजीशन खराब होने की ही पॉसिबिलिटी है। Because he is a qualified lawyer, so he cannot do anything else also. नहीं, मतलब he cannot be successful as an independent lawyer. What he should do, he should try to get associated with somebody, because a lot of law firms are there. So अगर उनके साथ associate होके काम करेगा, I think that will be much better for him. Okay. He is associated with ONGC and. हाँ, उस टाइप से करे कुछ भी, but not as an independent lawyer. बहुत ज्यादा उसको कुछ लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी। क्योंकि वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी काफी देर से, तो बट और खासतौर से डिविजनल चार्ट अगर आप देखें, नवांश और दशांश चार्ट दोनों ही, पर्टिकुलर नवांश चार्ट में देखें तो ये सारे मैलेफिक का एसोसिएशन है लग्न के ऊपर, जी जी, और वीनस के ऊपर भी। जी जी जी। तो ऐसे व्यक्तियों को भाग्य साथ नहीं देता, या मैं कहूँगा कि कुछ फल मिलता नहीं है। तो वही पोजीशन है यहाँ पर। जो D10 में राहु 10th हाउस में था सर, तो जैसे राहु का अंतर नहीं, पहली चीज तो यह ना कि इसका लग्न वीक हो गया। ओके, लग्न वीक हो गया, और लग्न जो है ये हैम्ड है बिटवीन ऑल मैलेफिक्स, और सन की पोजीशन भी खराब है। तो नेचुरली जब D10 चार्ट का लग्न वीक है या सन की पोजीशन खराब है, तो प्रोफेशनल लाइफ में तो अच्छा स्टेटस मिल ही नहीं सकता। बच्चे वगैरह ठीक सेट हो जाएंगे? 2 लड़कियां हैं। बच्चों का अगर 5th हाउस को देखें तो 5th हाउस इज नॉट बैड एक्चुअली, क्योंकि इसमें सिर्फ मरकरी का प्लेसमेंट है। पहली चीज, कोई भी मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है 5th हाउस के ऊपर। इसका लॉर्ड जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, नीच का है, बट इसका जो डेबिलिटेशन है वो कैंसिल भी हो रहा है। तो 5th हाउस के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो जहां तक बच्चों का सवाल है, बच्चे विल गेट सेटल्ड एंड दे विल गेट सेटल्ड वेल आल्सो। बट यही है कि ये राहु यहाँ पर है, तो नेचुरली इस हाउस से कनेक्टेड प्रॉब्लम तो देता ही है। जैसे वेल्थ हो गया या फैमिली से कनेक्टेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो इम्बैलेंस तो देता ही है। प्रैक्टिस का ज्यादा चलने का चांस नहीं लगता इस हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो बेस्ट यही है, ऐसे लोग कुछ कहीं पर एसोसिएट हो जाएं, कुछ एटलीस्ट दे गेट सम फिक्स्ड इनकम, सर्विस वगैरह करें कहीं पर किसी लॉ फर्म में, तो वो उनके लिए बेटर रहेगा। Anybody else has to say anything about this horoscope? Can he do anything, any upay for him, uncle? Like in order for him to have stable income? देखिए, 2-3 चीजें हैं कि उपाय इस स्टेज में करने का बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट नहीं होता। अगर शुरू से करते तो डेफिनेटली समथिंग कुड हैव बीन डन एक्चुअली। पर्टिकुलरली जैसे सन का हम उपाय करते शुरू से, कुछ ना करें, कम से कम सन को
अर्घ चढ़ा दें, जल चढ़ा दें उसको, जो है वही काफी है। गायत्री मंत्र का जाप करें, वही काफी है। और दूसरा, जो कालसर्प योग है शुरू से, उसका भी हम कुछ उपाय कर सकते थे, तब फायदा होता। बट और दूसरा यह है कि अगर, क्योंकि लग्न जो मंगल है, मंगल लग तो रहा है कि एक्सॉल्टेड है, सब कुछ है, बट वीक है जो हमने स्ट्रेंथ में देखा। तो मंगल के भी उपाय करेंगे, हनुमान जी की पूजा करें, जितना ज्यादा उसका उतना ही फायदा भी होगा, बट सिंसियरली करना चाहिए ना। और जैसे ये बता रही है जया जी की वो तो मेरे ख्याल में नहीं सुनेगा किसी की भी, क्योंकि मंगल इसका लॉर्ड है, उच्च का है, 3rd हाउस में है, तो वो किसी और की सुनेगा भी नहीं। नहीं सुनी सर ये जैसे कालसर्प योग का रेमेडी क्या होता है? कालसर्प योग is a cause of imbalance in the life, मतलब one of the उसका important aspect of the life is missing. उसका रेमेडी क्या हो सकता है? रेमेडीज बहुत सारी हैं, अगर हम शुरू से करें तो जैसे शिव जी की पूजा करें, या कालसर्प योग का यंत्र भी आता है, उसकी पूजा हम कर सकते हैं। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक लॉकेट पहनिए चांदी का, एक छोटा सा सर्प हो, और उसकी एक आंख गोमेद की हो, एक आंख कैट्स आई की हो, तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है। और बाकी तो जैसा आप जानते हैं, लोग बहुत सारी पूजा वूजा करते हैं नासिक में और गढ़गंगा में और कहीं कहीं जो है। बट कालसर्प की पूजा से तो अब क्या होगा, लेकिन अगर पहले से की जाती है, अगर सन वगैरह का उपाय करते या मार्स का उपाय करते, तो डेफिनेटली फायदा होता उसका। और प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब दशा भी कुछ दिन के बाद शनि की शुरू हो जाएगी, तो शनि का प्लेसमेंट भी तो अच्छा नहीं है ना। यहाँ भी देखिए, कहीं भी तो अच्छा नहीं है शनि का प्लेसमेंट। तो शनि की दशा भी बहुत अच्छी नहीं होगी, बल्कि और शनि की दशा में तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ जया जी पूछना है इसके बारे में? नहीं, बस यही था कि क्या होगा, बच्चे ठीक से सेट हो जाएंगे, क्या होगा इसका, बस यही था। बच्चे तो सेट हो जाएंगे, बच्चों का तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती, लेकिन खुद का जो इनकम का सवाल है, वो है मेन प्रॉब्लम एक्चुअली। वो है उसके चांसेस तो यही है कि मतलब ऐसे व्यक्ति अगर उस टाइप से करेंगे कहीं एसोसिएट होके, तो लाइफ चल सकती है, बट अगर इंडिपेंडेंट करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, फिर डेफिनेटली मुश्किल होगा। सर इनको मार्स का स्टोन पहनाया जाए तो कैसा रहेगा? मंगल का पहना सकते हैं, हाँ, वो भी वो और ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाएगा अंकल फिर? तो हमें ज्यादा चाहिए तो ना। और एडमेंट हो जाएंगे। और नहीं, बट ascendant we want is strong actually. ये ascendant is your potential also, your capability also. तो हो सकता है काम में, और क्योंकि जरूरी ये है कि जो प्रोफेशन है लॉयर का, उसमें मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी ही है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। That horoscope where it is gone. दूसरों के लिए बहुत लकी है, ये दूसरों की हेल्प करता रहता है। और 9th हाउस को 3rd हाउस स्ट्रांग है एक्चुअली में, जुपिटर ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति वैसे तो ठीक ही होते हैं, बट समहाउ जो 10th हाउस वगैरह है वो ठीक नहीं है एक्चुअली में। Anyway, we can make it a new horoscope.
I think this has been given by Vinuji, and I think her daughter, date of birth is 30th September 97, 6:25 p.m. Ghaziabad. Whether she will complete her CA or not, will she get a good job after that, or will she help her father, who is also a CA, because she want to do MBA, as she has very good administrative qualities? And when will she get married, and how her married life would be? Vinuji, are you there? No. सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, जी. ये जो लास्ट हॉरोस्कोप था इसकी ये रश्मि किरण तो बहुत अच्छी थी 50 समथिंग, तो वो कैसे मतलब लाइफ अच्छी रहेगी? लाइफ, हाँ, जैसे कह रहे हैं डोमिनेंट है बहुत ज्यादा, या उस टाइप से ठीक है, बट क्योंकि प्रोफेशनली की बात है, प्रोफेशन में नहीं हो रहा ठीक जो है। हाँ, पर इतनी अच्छी रश्मि किरण कैसे? हाँ, वो भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लग्न चार्ट से हमें बहुत अच्छे इंडिकेशन मिलते हैं, बट अनलेस दोज आर कंफर्म्ड बाय द डिविजनल चार्ट, वो एक्चुअल में नहीं मिल पाते। दैट इज द मेन रोल ऑफ डिविजनल चार्ट। ये बहुत हॉरोस्कोप में आपको मिलेगा कि लग्न चार्ट विल अपीयर टू बी वेरी गुड जी, और जब आप उसको डिविजनल चार्ट को देखेंगे तो वो कहीं सपोर्ट ही नहीं मिलता, आप उसमें और ही कुछ नजर आता है एक्चुअली में। तो मतलब रश्मि किरण का भी कोई डेफिनेट वो नहीं है कि... हाँ, मतलब दैट इज एन ओनली एन इंडिकेशन कि जैसे लग्न चार्ट ठीक लग रहा है, बट अल्टीमेटली तो हमें डिविजनल चार्ट से भी कंफर्मेशन तो लेना ही पड़ेगा ना। सो ये हॉरोस्कोप है, इसमें देखिए क्या पोजीशन है, ये डिग्रीज हैं प्लैनेट की। मून का तो डिग्री बहुत कम है, मून का 0 है, और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का सवाल है, सन इज 5.9, मून इज स्ट्रॉन्ग, मार्स, मरकरी, जुपिटर इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, Venus is also not strong, but particularly the moon is very strong in this case actually. बाकी planet ठीक हैं। Uncle, can I ask debilitated is Pardon? I wanted to clarify one thing, Uncle. Basic question है, ये जो हम strength देखते हैं planets की degrees के हिसाब से, जब हमने लेसन किया था शुरू में अंकल, तब आपने बताया था शायद कि ऑड साइन और इवन साइन में अलग अलग डिग्री के हिसाब से देखते हैं। हाँ, उसमें जो अवस्थाएं हमने डिस्कस की थी प्लैनेट की, उसमें ये था कि जो अवस्थाएं होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि बालादी अवस्था जिसको हम बोलते हैं, कि प्लैनेट इन्फेंट स्टेज में है या यंग एज में है या ओल्ड एज में है, तो उसमें जो डिग्रीज है रिवर्स हो जाती हैं odd or even sign में, but that only says कि unless and until the planet is in between 10 to 20 degree, it becomes a weak planet. वो किसी भी तरह से हम देखें कि planet की डिग्री अगर 0 to 5 है या 25 to 30 है, तो दोनों केसेस में ही वीक हो जाता है planet वो, but that is only an indicative, but ultimately जब हम total strength calculate करते हैं, तो that we do by this shut bulb, जो कि हम स्ट्रेंथ यहाँ देख रहे हैं। तो लेकिन जब हम यहाँ प्लैनेट की डिग्री देख रहे हैं अंकल, so we are looking for planets in the teens or above 10 and below 20, is it? Yeah, this is a rough estimate, because what happens कि many times you don't have this shut bulb in the birth chart actually, so then you have some idea about the degrees also, but जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें मून का डिग्री 0 है, मून का डिग्री 0 है, बट इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अभी आपने देखा कि सबसे ज्यादा है। करेक्ट। तो shut bulb is naturally is more realistic. I see. And ultimately we have to go on the shut bulb only. Okay, got it. Thank you. So let's see what is the position of planet here. Rashmi Kiran is 25.51. And firstly, Mercury is exalted. Mercury is exalted. And Mercury is placed in its own sign. Sorry, Mercury is exalted, is placed in the Kendra. Yeah. तो कौन सा योग बनता है?
भद्र महापुरुष योग। भद्र, हाँ, भद्र महापुरुष योग। तो भद्र महापुरुष योग बन गया पहली चीज। तो नेचुरली such people are real scholars actually. Or Mercury is basically a planet of knowledge also. So they are real scholar actually. और बाकी देखिए, वीनस अपने घर में है, मार्स अपने घर में वीनस अपने साइन में है, मार्स अपने मार्स साइन अपने में है, केतु और अपने sign में जुपिटर नहीं। सैटर्न और जुपिटर का परिवर्तन है, एक्सचेंज है। एक्सचेंज है। ये मेन चीज यहाँ हाँ पर जी। ये देखिए, जो एक्सचेंज है इन बिटवीन सैटर्न एंड जुपिटर। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? इनकम बहुत अच्छी, सर हाउ गेन्स और गेन्स बहुत अच्छे। लग्न है। Yeah, this is a wonderful position as far as financial gains are concerned. These people have a lot of money actually. There can never be any dearth of wealth. इतना तो पैसा जैसे यहाँ जुपिटर डेबिलिटेटेड है तो उसका कोई इम्पैक्ट? अब देखते हैं कि जुपिटर का डेबिलिटेशन कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट अस सी, बताइए आप, हो रहा है या नहीं हो रहा? सर एक दूसरे के साइन में बैठे हैं तो होगा। उससे कैसे होगा? नहीं नहीं, उससे नहीं। सर नहीं हो रहा, मार्स भी नहीं देख रहा है और नहीं वैसे सर मून मून और भी सैटर्न तो नहीं हो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों मून और सैटर्न तो एक दूसरे को देख रहे हैं ना। जुपिटर का एक्सॉल्टेशन, Right, the lord of its exaltation sign and the lord of its debilitation sign, they are in the mutual kendras. yes, Lord of its debilitation sign is Saturn, lord of its exaltation sign is Moon, and both are in quadrant to each other. तो जुपिटर का नीच भंग हो गया, जुपिटर का नीच भंग हो गया, तो इसलिए जुपिटर खराब नहीं है, जुपिटर इज गुड नाउ। देन बुध आदित्य योग है सन मरकरी का, और गज केसरी योग नहीं है। एंड अदर थिंग इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, 5th हाउस का 7th हाउस is in the 7th house. So naturally Lord of लव Trikon मैरिज, in the Kendra. So Love it makes a very good Raj Yoga also. ठीक है। Rahu Ketu, they are in the best position. Rahu in the 6th house and Ketu in the 12th house. 12th house. राहु केतु की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है यहाँ पर। और इवन अगर थोड़ा सा नवांश चार्ट को भी देखें, यहाँ पर नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है, लग्न अगर नवांश का देखें तो इसका लॉर्ड सैटर्न है, यहाँ पर अपने साइन में है, उसके ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, और यहाँ पर जो दो प्लैनेट का प्लेसमेंट है मून और मरकरी का है, और केतु इसको देख रहा है। तो लग्न इज स्ट्रॉन्ग इन द नवांश चार्ट। और अगर D10 चार्ट को देखें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लग्न हियर? या यहाँ बना मरकरी देता अपने हूँ, साइन में है। लेट मी मेक इट हियर। यहाँ देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लग्न? मरकरी लग्न तो अपने साइन स्ट्रांग में है, है। मरकरी अपने ही साइन में, बीन बोथ बेनिफिट्स। मरकरी अपने साइन में है, जुपिटर अपने साइन का है, और मून उच्च का है, दोनों बेनिफिट्स के बीच में है। मून एक्सॉल्टेड हाँ, है, मून एक्सॉल्टेड है, जुपिटर अपने साइन में है। सन भी ठीक है सर, क्योंकि जुपिटर देख रहा है। Sun is well placed, and this is what is needed for being successful in the profession actually. Lagna should be strong and Sun should be strong. तो दोनों ही दशांश चार्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ए गुड हॉरोस्कोप एक्चुअली, क्योंकि लग्न भी स्ट्रॉन्ग है और वो भी सन भी स्ट्रॉन्ग है, और नवांश की पोजीशन भी अच्छी है। जैसे पहले हमने हॉरोस्कोप देखा था, उसमें नवांश और दशांश दोनों ही नेगेटिव थे, बट यहाँ पर दोनों ही जो है वो पॉजिटिव है। और इवन अगर हम सन यहाँ पर जैसे 6 साइन में था, और दशांश चार्ट में सन जो है वो वर्गोत्तम है, ये भी 6 साइन में है, तो सन इज रियली स्ट्रॉन्ग, सन की पोजीशन जो है वो अच्छी है।
अंकल जो D10 में प्रोफेशन के लिए लग्न एंड सन देखते हैं, तो नवांश में मैरिज के लिए प्राइमरीली वीनस देखेंगे? नहीं, नवांश इज लाइक ए जनरल चार्ट एक्चुअली, एंड इन द नवांश लग्ना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, अगर लग्न स्ट्रांग है और 7th 8th हाउस अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो, बट लग्न अगर स्ट्रांग है तो एटलीस्ट टू जनरल लाइफ इज रियली गुड एक्चुअली. okay. So this But- horoscope is a female horoscope, right? Correct, it's female horoscope, and this is what they say that she is doing CA. Yeah. तो ये जो वीनस 8th में है अपने घर में, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इसमें नवांश में छठे घर में चला गया. हाँ, वीनस जो है अपने साइन में 8th हाउस में प्लेस्ड है. इसके ऊपर कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, केतु का एस्पेक्ट है जी. और कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर, ना ही कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस है. तो इट्स नॉट बैड, दिस इज ओके. थोड़ा सा अपने साइन में है वीनस सर. हाँ, अपने साइन में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इतना खराब नहीं है, बट थोड़ा सा वीक तो हो जाता है, बट दैट्स ऑल, बट अदरवाइज इट्स नॉट बैड एक्चुअली. पर सर इसकी इंटरप्रिटेशन फॉर जो 8th हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं उनके लिए क्या इंटरप्रिटेशन होगी इसकी? देखिए 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? इनहेरिटेंस, स्ट्रेंथ ऑफ मैरिटल बॉन्ड. Right. Longevity. For all those purpose, this is a good position. पहले तो मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके. क्योंकि मैलिफिक का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर. सेकेंडली, अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो वो भी मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खराब नहीं है, क्योंकि अगर मैलिफिक का इन्फ्लुएंस होता फिर तो बात दूसरी थी. तो मैलिफिक का ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. तो ओनली थिंग इज कि जब कोई भी प्लैनेट जब 8th हाउस में चला जाता है तो वो वीक हो जाता है स्ट्रेंथ में. दैट वी ऑलवेज कीप इन माइंड एक्चुअली. सर तो जैसे यहाँ पे 7th में सन है और 9th में मार्स है, तो इसको हम हेम्ड बिटवीन मेलेफिक्स कंसिडर नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ देखिए मरकरी है और जुपिटर भी इसको देख रहा है. ओके, तो इट इज एसोसिएटेड विद बेनिफिक्स आल्सो. ठीक है सर. और ये हम देख सकते हैं कि कोई हाउस अफ्लिक्टेड तो नहीं है. लेट अस सी कोई ऐसा हाउस है जो बहुत ज्यादा कोई अफ्लिक्टेड नजर आता हो, बट आई डोंट थिंक एक्चुअली, क्योंकि कोई भी ऐसा हाउस नहीं लग रहा कि जो बहुत खराब हो इस केस में. राइट. कहीं भी नॉट इवन ए सिंगल हाउस जो बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हो, नहीं है कोई भी ऐसा. So most of the houses are well placed. और दशा जो चल रही है इस समय, राहु है, उसके बाद राहु जुपिटर का पीरियड शुरू होगा. तो जुपिटर तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा प्रोफेसर. तो नेचुरली ये कंप्लीट तो हो ही जाएगा कोर्स. सीए तो कंप्लीट हो ही जाएगा. अब क्वेश्चन इज कि what she is saying कि whether she will have do some independent thing or will get involved with her father, that we have to see. तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? सर 9th हाउस स्ट्रांग है, मार्स अपने हाउस अपने साइन में है और मार्स पहले तो हमने ये दशांश चार्ट देखा और देखा कि दशांश चार्ट काफी अच्छा है फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल इन प्रोफेशन. तो ऐसे लोग पहली चीज तो ये कि इंडिपेंडेंट ही रहना पसंद करते हैं. किसी के साथ क्यों रहेंगे, पहली चीज, जब सक्सेस इंडिकेटेड है यहाँ पर दशांश चार्ट में. दूसरा, ये जो सन सैटर्न का एसोसिएशन है, ये भी इंडिकेट करता है डिफरेंस इन ओपिनियन विद द फादर. तो ऐसे लोगों का जनरली फादर के साथ तालमेल बहुत ज्यादा बैठता नहीं है एक्चुअली में. तो इट इज एडवाइजेबल कि फादर के साथ इन्वॉल्व ना होकर ऐसे लोग अगर इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो वो उनके लिए बेटर होगा. मैरिज का कैसा इंडिकेशन है यहाँ से? सर फिर 7th हाउस में भी सन सैटर्न दोनों का
इन्फ्लुएंस है एक तरीके से। हाँ, सन सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, और जो बेनिफिक प्लैनेट है वो मरकरी और जुपिटर है, राइट। उनका इन्फ्लुएंस है। दूसरा जुपिटर सर षटबल में काफी वीक है, वीकेस्ट है जुपिटर। क्या चीज? सर जुपिटर षटबल में 7th रैंक पे है। हाँ, जुपिटर नीच का तो है ही है, बट नीच भंग राजयोग जब बन जाता है तो Right. फिर ये स्ट्रेंथ काम नहीं करेगी, देन योग विल प्रिवेल। नहीं सर, षटबल में वीक है जुपिटर, 7th मैं रैंक। यही कह रहा हूँ कि जब कोई योग बनता है ना किसी हॉरोस्कोप में, जी सर। फिर देन योग प्रिवेल्स, नॉट द नॉर्मल Okay. पोजीशन ऑफ द प्लैनेट एक्चुअली। ओके सर। या तो सर नीच भंग राजयोग ये मतलब इन जनरल ओवरऑल लाइफ के लिए होता है या सिर्फ प्रोफेशन? नहीं, टोटल, that is Okay. for this planet. So this planet now, not only the debilitation is getting cancelled, राइट। but this planet has become a Rajyog Karak, like any other Rajyog. तो इसके इस प्लैनेट के जो भी सिग्निफिकेशंस होंगे उनमें अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। And Jupiter is having an aspect on 7th house, 7th house। और मरकरी Right. ऑलरेडी है, और मैलिफिक का जैसे आपने देखा कि सन और सैटर्न का भी एसोसिएशन है, और मून जो है वो लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस है, तो मून इज आल्सो ए बेनिफिक प्लैनेट इन दिस केस। तो मून भी एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, उसका भी बेनिफिक प्लैनेट का भी इन्फ्लुएंस है। सर फिर इसमें तो लव मैरिज का भी इंडिकेशन है, लॉर्ड ऑफ 5th इज इन 7th। लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस इन द 7th हाउस, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ मैरिज विद अ नोन पर्सन, एक्चुअली लव मैरिज कह सकते हैं आपको, तो वो इंडिकेशन है, बट मैरिज में कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम इंडिकेटेड नहीं है। सर इवन नवांश में भी लग्न अच्छा है, स्ट्रांग। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि नवांश चार्ट को देखने के बाद ही, कि नवांश चार्ट में लग्न के ऊपर देखिए सारे बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। मरकरी यहाँ पर है, जुपिटर वीनस भी यहाँ देख रहे हैं इसको भी। लग्न के लॉर्ड के ऊपर भी जुपिटर का इन्फ्लुएंस है। तो कहीं भी मतलब कोई भी हाउस ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे कि अफ्लिक्टेड है बहुत ज्यादा। जैसे कुछ हॉरोस्कोप में जनरली होता है कि एक आध हाउस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड होता है, बट यहाँ पर कोई भी हम नहीं कह सकते कोई पर्टिकुलर हाउस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है। अंकल एक चीज क्लैरिफाई करनी थी, आपने कहा कि नवांश में जुपिटर देख रहा है बट देख रहा है 12th हाउस को, सो देयरफॉर देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑन लग्न, इज दैट व्हाई? हाँ बिल्कुल, नहीं इन बोथ वेज। फर्स्टली यहाँ पर देख रहा है 12th हाउस को, और Correct. इसके लॉर्ड को भी देख रहा है, करेक्ट। लग्न के लॉर्ड को। या तो इसी से पॉजिटिव एस्पेक्ट, वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट एक्चुअली। सर ये जो मून 0 डिग्री का है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? आप देख रहे हैं ना कि टोटल स्ट्रेंथ मून की कितनी है यहाँ पर, दैट इज हैविंग द हाईएस्ट स्ट्रेंथ। ओ, Moon is the most important planet, is the most dominating planet in this case. जी। मेन प्लैनेट तो मून ही है। वैसे भी 5th हाउस का लॉर्ड है जो फंक्शनल बेनिफिक हो जाता है, और 7th हाउस में प्लेस्ड है, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में, तो राजयोग कारक तो अपने आप बन गया वो। इसका मतलब हम 100% डिग्री पे भी डिपेंड नहीं कर सकते। नहीं, that gives only a rough idea. You can't depend on the degree when you have a Shadbal with you. Shadbal में तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं, एक दो एस्पेक्ट नहीं करते। तो नेचुरली जब सम टोटल उससे देखते हैं तो दैट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पर ये दोनों डिविजनल चार्ट इसको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैरिज ठीक रहेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बाकी प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लाइफ में कोई प्रॉब्लम इंडिकेटेड नहीं है ऐसी कुछ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जाएंगी या मतलब और किसी टाइप के जॉब करेंगे अंकल, ये क्वेश्चन था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे देखेंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मींस sun should be strong. So how sun is associated here with the house of profession? Let us see that actually.
क्योंकि जब तक सन का एसोसिएशन नहीं होगा and sun is well placed and it is not associated with the 10th house, you cannot get a administrative post. सर 10th लॉर्ड सन को देख रहा है. Right. वेरी गुड. पहली चीज तो यह है कि सन केंद्र में प्लेस्ड है और दोनों बेनिफिक का भी इन्फ्लुएंस है और 10th हाउस के लॉर्ड का भी इन्फ्लुएंस है. एंड व्हाट इज सन? सन इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस. सन इज द लॉर्ड ऑफ 5th house, sorry, 6th house. Six. हाँ, and 6 is very important house from profession Job. point of view. और हम कहते हैं कि जब तक 6th हाउस का एसोसिएशन 10th हाउस के साथ नहीं होता, आपको बहुत अच्छा स्टेटस लाइफ में नहीं मिल सकता. क्योंकि जो 6th हाउस है ये वाला, this is 9th from the 10th house. So this becomes your fortune in the profession. तो इसका लॉर्ड है और वो 10th हाउस के साथ एसोसिएटेड है और मरकरी और जुपिटर का एसोसिएशन भी है. तो सन हम कहेंगे कि सन इज वेल प्लेस्ड और इसका एसोसिएशन है विद द 10th हाउस. इट हैज एन एसोसिएशन विद द 6th हाउस आल्सो. तो वो सारा इंडिकेशन यही है कि प्रोफेशनली ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा करता है और सन स्ट्रांग है, सैटर्न स्ट्रांग है, तो स्टेटस तो मिलेगा ही मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी मिलेगी. और बाकी प्लैनेट भी काफी अच्छे हैं. कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है या कोई ऐसा हाउस नहीं है जिसको हम कहें कि बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो. क्योंकि नॉर्मली कोई ना कोई हाउस एफ्लिक्टेड होता है, बट यहाँ पर कोई भी हाउस नहीं है ऐसा जो कि एफ्लिक्शन में हो. So any other thing about this horoscope? राजेश जी आप कहाँ हैं? यहीं पर है जैन साहब. तो पूछिए ना. नहीं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, कुछ पूछने को बचता नहीं है. You are expert in this, so you should ask questions. और let's have some general discussion. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो. अंकल एक क्वेश्चन था और मुझे. एक थोड़ा सा इवेंट्स पे बता दीजिए कि इवेंट जैसे मैरिज है, घर बनाना है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दीजिए. एक क्लास एक्स्ट्रा लिख लीजिए सर उसके लिए. हाँ, तो टाइमिंग हाँ, टाइमिंग ऑफ इवेंट हमने डिस्कस किया था, बट तीनों चीजों को देखकर, जैसे अभी हमने पहला हॉरोस्कोप डिस्कस किया था अन्वेषा वाला, तो उसमें देखा हमने कि ट्रांजिट खराब है, दशा भी खराब है और प्लैनेट की पोजीशन भी खराब है 10th साइन को देखकर. तो प्रेजेंट ट्रांजिट को देखकर, दशा को देखकर और प्लैनेट की पोजीशन को देखकर हम इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं. और उसमें तीनों का ही रोल इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट की पोजीशन का भी, दशा का भी और ट्रांजिट का भी. और जब तीनों एटलीस्ट अगर दो चीजें हमें हेल्प करती हैं तब इवेंट जो है वो होता है, अदरवाइज इवेंट नहीं होगा एक्चुअली में. और अगर ज्यादा खराब है, दो चीजें ज्यादा खराब है, तो नेचुरली उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे ऊपर. तो जैन साहब एक क्वेश्चन है जी. जैन साहब, अष्टक से आप कब देखते हैं ट्रांजिट और अदर वे कैसे देखते हैं? हाँ, क्यों देखते हैं? अष्टक वर्ग देखिए, मान लीजिए, लेट अस सी दिस हॉरोस्कोप. Sometimes you see अष्टक वर्ग, sometimes you do not see अष्टक वर्ग. जस्ट नहीं, अष्टक वर्ग तो मैं कहा ना कि डे टू डे बेसिस पर ट्रांजिट देखना हो या किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट देखना हो, उसके क्या हमें रिजल्ट मिलेंगे, तो अष्टक वर्ग ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे. खाली प्लैनेट को देख के और अष्टक वर्ग को देख के रिजल्ट अलग अलग आ जाते हैं कई बार. देखिए, जब हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि एक हमने क्या देखा कि एक हाउस पर 3 मेलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है. एक हाउस के ऊपर 3 मेलिफिक प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है, और वो भी प्रिंसिपल है कि ट्रांजिट ऑफ ए मेलिफिक ओवर ए मेलिफिक इज नेवर गुड पोजीशन. तो उसमें फिर अष्टक वर्ग का मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अगर 3 मेलिफिक प्लैनेट एक हाउस के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अगर हम इंडिविजुअल प्लैनेट का अष्टक वो देखें
ट्रांजिट के रिजल्ट तो ठीक है, बट जब हमने देख लिया कि कंबाइंड इन्फ्लुएंस है एक हाउस के ऊपर और सारा मेलिफिक का इन्फ्लुएंस है, तो वो फिर अच्छा क्या करेगा? तो दैट जैसे मींस यहाँ- ओनली अष्टक वर्गा पे हम रिलाई नहीं कर सकते, करेक्ट? नहीं, अष्टक वर्गा जैसे मैं कहता हूँ कि इट्स एन ओनली एन एडिशनल टूल, ओके, इट्स नॉट टू बी रिलाइड अपॉन कंप्लीटली। थोड़ा सा हम इसका एडवांटेज जरूर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हॉरोस्कोप था हमारा एंड वी वांटेड टू नो कि कौन से हाउस स्ट्रांग है, कौन से हाउस वीक है। तो यहाँ आप देखिए क्या पोजीशन है सर्वाष्टक वर्गा की। असेंडेंट इज वेरी स्ट्रांग, 42 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं एक्चुअली में। और लगन तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, लगन बहुत स्ट्रांग है। थर्ड हाउस को देखें, ये भी स्ट्रांग है, जो कि होना भी चाहिए, उपाच्य स्थान। फिर फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिक कंफर्ट्स। फिर ये हाउस वीक है, सिक्स्थ हाउस, जो कि स्ट्रांग होना चाहिए था एक्चुअली में। फिर अगर हम 10th हाउस को देखें तो 10th हाउस भी स्ट्रांग है। और तो वैसे ये भी, प्रोफेशन कुछ नहीं है। हाँ जी, वैसे प्रोफेशन में कुछ खास नहीं है। नहीं उसका नहीं है ये। उसी का तो है सर। अच्छा, उसी का है क्या ये? हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि इतनी स्ट्रांग लगन है, पर इसका वैसे हाँ। बहुत है, पर प्रोफेशन कुछ नहीं है। नहीं, लगन से मतलब तो हमें ये हाउस देखना पड़ेगा ना। ये देखिए सिक्स्थ हाउस जो है, हाँ ये बहुत वीक हाउस है। जी 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 दिस इज द फॉर्च्यून इन प्रोफेशन। जी जी सर, जैसे लगन में 42 नंबर है, इसका क्या मतलब है? लगन मतलब डोमिनेंट है, जैसा आप कह रहे हैं, हाँ, बहुत डोमिनेटिंग है। वो तो रहेगा। और सर फिजिक बहुत स्ट्रांग होगी। हाँ और आपने देखा थर्ड हाउस भी स्ट्रांग है, तो अपने हाँ, भाई बहनों भाई का बहनों सपोर्ट। में बहुत प्यार है, भाई बहनों में। हाँ, तो वो ये स्ट्रांग है। बट ये देखिए 11th हाउस बहुत वीक है। 12th हाउस स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए 12th हाउस। बट जैन साहब 27 ज्यादा वीक तो नहीं हुआ 11th हाउस में? कौन सा? 11th 27 is a very small number of points for the 11th house. it is more than 25 at नहीं, least. 25 is for the general house actually. जो 11th house है, that is the most important house and that is the ultimate gain of the life. जब तक उसमें आपको जितना पॉजिटिव होगा उतना ही अच्छा है। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 40 बोले थे उस समय आपने। not 40, 54 points, 54 points, then only we say कि purpose of life is solved. वो तो रेयरली है साहब। हाँ, तो 27 में तो कुछ अचीव नहीं किया ना अपने लाइफ में अपना। और 6th हाउस वीक है, विच इज द हाउस ऑफ फॉर्चून इन द प्रोफेशन। और ये जो 12th हाउस है वो खराब है, एक्सपेंडिचर का हाउस है। तो नेचुरली फाइनेंस प्रॉब्लम तो फिर इंडिकेट करता ही है एक्चुअली में कि 12th हाउस इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। और 10th हाउस तो स्ट्रांग है सर, इसमें बहुत ज्यादा 32। हाँ, 10th हाउस स्ट्रांग है, बट ये जो फॉर्च्यून है उसका भाग्य का स्थान है वो खराब है। बट जैन साहब 12th तो वीक है, 12th 25 है। 25 बहुत स्ट्रांग है 12th हाउस के लिए। ओके, इसमें तो जितने कम पॉइंट है उतना ही अच्छा है। और जब हमने बात की थी 12th हाउस के लिए, तो कहा था कि 15, 16, 17 पॉइंट है वो बहुत है इसमें जो है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जब हम ट्रांजिट की बात कर रहे थे, जैसे कि लेट अस से कि जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है, तो उसकी सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे? तो यहाँ पर देखो, इसमें सैटर्न का जो ये भिन्नाष्टक वर्गा है, यहाँ पर कितने पॉइंट है? यहाँ पर 3 पॉइंट है। तो नेचुरली सैटर्न का ट्रांजिट भी ठीक नहीं है। 7.5 भी चल रही है। सर इसमें कुछ प्रॉपर्टी का सुख है? प्रॉपर्टी से कुछ सुख है इसको? मंगल स्ट्रांग है तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, बिकॉज सम प्रॉपर ही इज हैविंग सम प्रॉपर्टी। हाँ, तो मंगल क्योंकि स्ट्रांग है, मंगल प्लैनेट ठीक है इसके लिए, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। और ये देखो 4th हाउस भी स्ट्रांग है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल प्लैनेट का ट्रांजिट तो राजेश जी ठीक है, लेकिन जब 2-3 मैलेफिक इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो फिर वो
तो अपने आप ही वो उसके रिजल्ट खराब ही मिलेंगे आप। सर इनकी रश्मि किरण देखिए जरा कितनी। रश्मि किरण तो बहुत थी ना। या हाँ 50 से ऊपर। हाँ but 56 थी सर। वही बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इनकम कुछ नहीं है, रश्मि किरण। हाँ बट नवांश और दशांश चार्ट बहुत खराब हैं जो हम लोगों ने देखे थे। है भी नहीं इनकम। नवांश और दशांश चार्ट दोनों ही ठीक नहीं है। अनिल जी, कैन वी से कि ये रश्मि किरण में ये जो है अब नवांश और दशांश को नहीं लिया जाता, ओनली नेचुरली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे हम लोग लग्न चार्ट देखते हैं और लग्न चार्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे योग हैं, राजयोग हैं, सब कुछ है, और फिर भी हम देखते हैं कि उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे क्योंकि जो डिविजनल चार्ट है वो कंफर्म नहीं करते। तो वही चीज ये रश्मि किरण की भी है कि इट अपीयर्स टू बी गुड बट ऑल दिस थिंग्स शुड बी कंफर्म्ड बाय द डिविजनल चार्ट्स। अनिल जी एक चीज और, शतबाला में भी हम लोग जो है डिविजनल चार्ट का इफेक्ट नहीं आता है। नहीं आता है उसमें, जो एक जब हम लोगों ने पोजिशनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट की थी तो वी सॉ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द 7 डिविजनल चार्ट्स। उसमें सर योग का इफेक्ट नहीं आता है। योग का नहीं आता ऑफ कोर्स। जब जैसे मैंने कहा कि अगर कोई योग बनता है हॉरोस्कोप में तो दैट योग विल डोमिनेट, नॉट द इंडिविजुअल पोजीशन ऑफ प्लैनेट। ओके ओके, थैंक यू। सर ये जो मून के साथ जो हम जो बोलते हैं उसको नलिफाई, तो अगर जुपिटर स्ट्रांग हो तो हो जाता है, और जुपिटर स्ट्रांग हो तो नलिफाई हो जाता है। सर अगर क्या नलिफाई हो जाता है? वो केमदुम योग जो होता है। हाँ, केमद्रुम योग में अगर जुपिटर स्ट्रांग नहीं, मून शुड हैव एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर या मून शुड बी वेरी स्ट्रांग। जुपिटर के खाली स्ट्रांग होने से नहीं होगा, मून के ऊपर उसका एसोसिएशन होना चाहिए या मून शुड बी वेरी स्ट्रांग। अनिल जी एक और क्वेश्चन है, यदि कोई हाउस जो है बहुत मैलिफिक है और उसमें स्ट्रांग वीनस का एस्पेक्ट है तो इंप्रूव करेगा क्या वो? नहीं, मैंने ये कहा कि नेट इफेक्ट हमें देखना है कि कितना बेनिफिक है कितना मैलिफिक है। तो मैलिफिकनेस को थोड़ा कम कर देगा अगर वीनस का एस्पेक्ट है, बट अगर मैलिफिक बहुत ज्यादा है तो उसके रिजल्ट तो नेगेटिव ही मिलेंगे ना आपको। पर जुपिटर ज्यादा, हाँ, ओनली जुपिटर इज ए प्लैनेट बिकॉज दैट इज जस्ट लाइक ए ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तो वो डेफिनेटली काफी नेगेटिव इन्फ्लुएंस को नलिफाई कर देता है। दैट इज मरकरी, और ये ज्यादा नहीं कर पाते affect. इतना नहीं कर पाएंगे, बट जुपिटर डेफिनेटली हेल्प्स एक्चुअली। ओके या अंकल सर जुपिटर इन द 12th हाउस, सॉरी जी, हाँ हाँ वो भावना है बोलो। जय जी। अच्छा मैं बताती अंकल, माय सिंपल क्वेश्चन, जुपिटर इन द 12th हाउस जनरली in a general way, basic way is considered, how would you think about that? देखिए, जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ मोक्ष and 12th house is also a planet of moksha. So such people, they may be spiritually inclined actually, or they may go higher in the spiritual plane. और वैसे भी जो हाउस ऑफ मोक्ष हैं, जब हमने कैटेगराइजेशन किया था डिफरेंट हाउसेस का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, तो हमने देखा था कि 4, 8, 12 हाउसेस जो हैं वो मोक्ष के स्थान हैं। करेक्ट। तो जुपिटर 12th हाउस में बैठकर तीनों मोक्ष के स्थान को कवर करता है। So person may go higher on the spiritual plane. So from that angle, it's not a bad position actually. सर मान लीजिए चंद्रमा वैसे तो अकेला है, कहीं केमद्रुम योग बना रहा है, लेकिन उसमें चंद्रादि योग भी बन रहा है, तो फिर वो कैंसिल हो गया ना केमद्रुम? हाँ, नेचुरली वो तो चंद्रमा स्ट्रांग हो गया ना, जब सारा बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो गया तो फिर तो अकेला कहाँ रहा वो। ठीक। Chandradi Yoga means influence of benefic planets, is it? Yeah, when it has the influence of all 3 benefic planets actually. चलिए फिर, in case there is no question then. सर मेरा इंटरनेट चला गया था इसलिए लीव हो गया था। बताइए।
जानना था कि वो जो केमतुम जोग है, अगर उसको अगर मून को अगर जुपिटर नहीं देख रहा है, मून जुपिटर स्ट्रांग है या एस्पेक्ट कर रहा है, तब तो नॉलिफाई हो ही रहा है। हाँ, बट अगर मून अगर वीक है, मून के साथ कोई प्लैनेट नहीं है, बट जुपिटर स्ट्रांग होने से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो जुपिटर स्ट्रांग होगा ना, मून से क्या फर्क पड़ेगा? मून को तो कुछ नहीं करेगा, मून को तो साथ चाहिए किसी का। नहीं सर, अगर मतलब मून बहुत वीक है, बट अगर जुपिटर स्ट्रांग होने में भी वो नॉलिफाई नहीं करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, बट सर जब हमने ये पढ़ा था तब हमने देखा था कि मून के साथ अगर जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, उसको एस्पेक्ट तब हाँ, मून के साथ करेगा। हाँ, मून का जुपिटर का एसोसिएशन होना चाहिए ना मून के ऊपर। एसोसिएशन जरूरी है, एसोसिएशन नहीं है तो फिर तो अकेले ही रह गया ना मून तो। और एक जैसे अगर जुपिटर का एसोसिएशन नहीं है, बट अगर वेनस के साथ एसोसिएशन होगा, मतलब वेनस के साथ म्यूचुअल में होगा, तब तो हो जाएगा, मतलब हाँ तब हो जाएगा, बिकॉज वीनस क्वाड्रेंट में या मतलब खुद मतलब मून और वेनस दोनों क्वाड्रेंट में होना चाहिए, या फिर म्यूचुअल क्वाड्रेंट में होगा तब हो जाएगा? म्यूचुअल में भी होगा तभी भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मून के साथ अगर म्यूचुअल क्वाड्रेंट में भी कोई प्लैनेट है तो देन आल्सो मून बिकम्स स्ट्रांग। Mutual quadrant means you count 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10. Let us see. Count from the moon. For example, this horoscope is there. Moon is where? Moon is here. Yes, sir. So we will say that Mars and Jupiter, they are in mutual quadrant with the moon because एक position है. Hanji. Then Sun and Venus, these are fourth from moon. I see. Okay. So we will say Sun and Venus are also in the mutual quadrant. I see. Okay. मतलब सर इधर जैसे वेनस मून से 4th पोजीशन में है, मतलब ये भी क्वाड्रेंट हो गया। बिल्कुल, हाँ, मून से क्वाड्रेंट हो गया वो। ओके सर, थैंक यू। Okay then, thank you so much. Thank you, sir. Okay, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. Good night.